फटाफट कर बस। हम्म। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. I welcome you for today's lecture. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास में आगे हैं उन्हें मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज के लेक्चर के लिए हम 1 मिनट इंतज़ार करते हैं ताकि बाकी लोग भी आ जाएं, फिर उसके बाद हम आज का अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। अब हम अपना लेक्चर बाकायदा शुरू करते हैं। तो अपने पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस किया था। हाफ एलिमेंट्स डिस्कस हो चुके थे और ये लेक्चर आपको मैं ग्रुप में शेयर भी कर चुका हूँ। डिसाइड तो ये किया गया था कि बाकी का हाफ आप पढ़ लेंगे, या मेरा जहन ये था कि आपसे कहूँगा कि बाकी का लेक्चर आप खुद से स्टडी कर लीजिए, लेकिन ये एलिमेंट्स बड़े अहम हैं लिंग्विस्टिक्स को समझने के लिए। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि इसमें से आपका पेपर भी बनना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह बनने हैं, और अगली बात ये है कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लिंग्विस्टिक्स के। इसमें वो चीज़ें शामिल है जो कि पेपर में आती हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती है। अगर कहीं आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप से अगर पूछा जाता है कि क्या आपने लिंग्विस्टिक्स को स्टडी किया हुआ है, और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जो सवालात होते हैं उनमें से आधे सवालों का जवाब इस लेक्चर में मौजूद है, और बाकी के आधे सवालों का जवाब एक और लेक्चर में होगा जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको डिलीवर किया जाएगा। इस हफ्ते तो नहीं, नेक्स्ट वीक में। ये थी जिसकी अहमियत, इसकी बिना पर मैं ये लेक्चर मुकम्मल डिलीवर कर रहा हूँ, वरना शायद आपसे कहता कि बाकी का हाफ आप लोग पढ़ लें। पिछले हफ्ते में हमने फोनीम पढ़ा था और मोफीम, लेक्सीम, सिंटेक्स का डिफरेंस पढ़ा था।
اچھا جی. اوکے, آپ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ کلاس میں موجود ہیں, آپ کے لیے میری آواز کے سننے میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ کیونکہ مجھے کچھ میسج آ رہا تھا کہ شاید کوئی پرابلم ہے, اس لیے میں نے اسکرین کو 1 منٹ کے لیے کلوز کیا تھا. لیکن تک میں 4 سے 5 افراد موجود ہیں کلاس میں, اور آپ میں سے کسی کو ساؤنڈ سسٹم میں کوئی پرابلم ہے یا اسکرین شیئر میں؟ یس سر, مجھے آ رہا ہے. اوکے دیٹس فائن. اوکے دیٹس فائن. تو نو. میں کہہ رہا تھا کہ لیکسیم اور سینٹیکس وغیرہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد کانٹیکسٹ پڑھا تھا, سیمینٹکس, پریگمیٹکس, یہ ساری ڈیفینیشنز ہیں, یاد رہے, اور یہی چیزیں پیپر میں آبجیکٹیو میں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. آج ہم نے فونیٹکس اور فونولوجی کو ڈسکس کرنا ہے. فونیٹکس, فونولوجی, یہ دو چیزیں لنگوسٹکس میں دو برانچز ہیں, دو شاخیں ہیں لینگویج اسٹڈی سے ریلیٹڈ, اور یہ پورا سبجیکٹ ہے. اس پر ریسرچ کی گئی ہے, اس پر تھیسس لکھے جاتے ہیں, اس پر آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں, اور یونیورسٹی لیول پر یہ 100 مارکس کا ایک پورا پیپر ہے. آپ کے لیے تو صرف اس کا انٹروڈکشن ہے, چند آبجیکٹیوز اس میں سے آ جائیں گی, البتہ یہ پورا 100 نمبر کا پیپر ہے. اوکے, فونیٹکس اور فونولوجی. لفظ فون, PHONE, فون اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ہم یہ لفظ فون اکثر استعمال کرتے ہیں, جیسے ہیڈ فون, ٹیلی فون, مائکرو فون, موبائل فون. تو فون لفظ کیا ہے؟ فون از ریلیٹڈ ٹو ساؤنڈ, یہ آواز سے ریلیٹڈ ہے. اور اس لفظ فون سے آگے فونیٹکس بنا ہے. اب فونیٹکس کیا ہے؟ فونیٹکس از اے اسٹڈی آف ہیومن اسپیچ ساؤنڈس. اگر بڑی مختصر سی آپ سے ڈیفینیشن پوچھی جائے کویسچن پیپر میں کہ ڈیفائن فونیٹکس, تو فونیٹکس کیا جی؟ فونیٹکس از دا اسٹڈی آف ہیومن اسپیچ ساؤنڈس. انسانی جو اسپیچ ساؤنڈز ہیں ان کا مطالعہ کرنا فونیٹکس کہلاتا ہے. اٹ از اے اسٹڈی آف ہاؤ ساؤنڈز آر پروڈیوسڈ, ٹرانسمیٹڈ اینڈ ہرڈ. اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. فونیٹکس بتاتی ہے کہ ہاؤ ساؤنڈز آر پروڈیوسڈ, ہمارے حلق سے جو آواز نکلتی ہے کس طرح سے. ٹرانسمیٹڈ, یہ دوسرے شخص تک ٹرانسفر کیسے کی جاتی ہے. اینڈ ہرڈ, اور اس کو سنا اور سمجھا کیسے جاتا ہے. فونیٹکس از ڈیفائنڈ ایز دا اسٹڈی آف ہیومن اسپیچ ساؤنڈز, یہ بھی اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. اٹ اسٹڈیز دا پروڈکشن آف اسپیچ ساؤنڈ, اس میں شامل ہے کہ اسپیچ ساؤنڈز کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں. اینڈ دا ٹرانسمیشن سسٹم یوز ٹو ریپرزینٹ دیم, ان کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ایک شخص کی زبان سے دوسرے شخص کے کان تک ٹرانسمٹ کرنے کا سسٹم کیا ہے. فونیٹکس ڈیلز ود دا ساؤنڈز دیم سیلز ریدر دین دا کانٹیکسٹ ان وچ دے آر یوزڈ. ہاں جی, یہ بڑی اہم چیز ہے فونیٹکس کو سمجھنے کے لیے. آئی ریپیٹ کہ فونیٹکس ڈیلز ود دا ساؤنڈز, فونیٹکس کا براہ راست تعلق اسپیچ ساؤنڈز سے ہے, ریدر دین دا کانٹیکسٹ ان وچ دے آر یوزڈ. فونیٹکس ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ خاص اسپیچ ساؤنڈ کس کانٹیکسٹ میں پروڈیوس کی جاتی ہے. مثلا ایک غصے بھری آواز ہے تو وہ کس وقت پروڈیوس کی جائے گی. ہنسی کا کہا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں لگایا گیا ہے. کوئی فقرہ, کوئی جملہ کہا گیا جس کا بیک گراؤنڈ طنز ہے, کسی کی ذلت کرنا ہے, وہ طنز, وہ ذلت اس کا کانٹیکسٹ ہے. فونیٹکس ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ایک خاص اسپیچ ساؤنڈ کس کانٹیکسٹ میں پروڈیوس کی گئی ہے, کسی کی ذلت کے لیے, اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے, اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے, یا اپنے خوف کا, اپنی حیرانگی کا اظہار کرنے کے لیے. یہ فونیٹکس کا ڈپارٹمنٹ نہیں. فونیٹکس براہ راست اسپیچ ساؤنڈز کو اسٹڈی کرتا ہے. اوکے, فونیٹکس از اے برانچ آف لنگوسٹکس. جی, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ لنگوسٹکس میں سے ایک برانچ ہے, ایک شاخ ہے, دیٹ فوکسز آن دا پروڈکشن اینڈ کلاسیفیکیشن آف ورڈز اسپیچ ساؤنڈز. یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے جناب. اسے میں آپ کی آسانی کے لیے سیپریٹ کر دیتا ہوں.
اوکے تو یہ تین اسپیچ ساؤنڈ سوری فونیٹکس سے متعلق ڈیفینیشنز تھیں. ان تینوں میں سے جو ڈیفینیشن آپ کے خیال میں آسان ہو آپ اسے اپنائیں. لاسٹ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. فونیٹکس از اے برانچ آف لنگوسٹکس دیٹ فوکسز آن دا پروڈکشن اینڈ کلاسیفیکیشن آف دا ورڈز اسپیچ ساؤنڈز. فونیٹکس کیا کرتا ہے؟ یہ اسپیچ ساؤنڈز کی پروڈکشنز اینڈ دیئر کلاسیفیکیشن اس کو ڈیل کرتا ہے. دا پروڈکشن آف اسپیچ لکس ایٹ دا interaction of different vocal organs. The production of speech looks at the interaction of different vocal organs, for example, the lips, tongue, and teeth to produce particular sounds. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جب ایک اسپیچ ساؤنڈ پروڈیوس کی جاتی ہے تو اس میں ہمارے ووکل آرگنس شامل ہوتے ہیں اور وہ ووکل آرگنس کون سے ہیں؟ وہ لپس، ٹنگ اینڈ ٹیتھ. یہ تین آرگنز ہیں جو کہ مل کر ایک اسپیچ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. ٹو پروڈیوس پرٹیکولر ساؤنڈ بائی کلاسیفیکیشن آف اسپیچ وی فوکس آن دا sorting of speech sounds into categories which can be seen in what it called the International Phonetic Alphabet IPA. اوکے اور جب ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے تو ان کی کلاسیفیکیشنز کے لیے انٹرنیشنل لیول پر ایک الفابیٹس ترتیب دیے گئے ہیں جن کو آئی پی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل فونیٹکس الفابیٹس. اس میں اے بی سی نہیں لکھی ہوئی بلکہ اے بی سی کی جو ساؤنڈز بنتی ہیں ان کو سمبلز دیے گئے ہیں. The APA is a framework that uses a single symbol to describe each distinct sound in the language and can be found in dictionaries and in the textbooks worldwide. اور یہ جو سمبلز ہیں یہ ڈکشنریز میں پائے جاتے ہیں. جب آپ ڈکشنری کھولتے ہیں کسی لفظ کا مطلب دیکھنے کے لیے تو وہاں یہ سمبلز آپ کو ملتے ہیں. فار ایگزامپل دا ساؤنڈ فش ہیز 4 لیٹرز بٹ دا آئی پی اے ریپرزینٹس دس as 3 sounds FI where this sounds for the SH sound. یہ جو ساؤنڈ ہے یہ جو سمبل ہے جیسے کہ ایس کو اسٹریچ کر دیا گیا ہو ایس کو لانگ کر دیا گیا ہو یہ ایس ایچ ساؤنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوکے تو یہ تھا جی فونیٹکس کا انٹروڈکشن. ہم نے اس میں 3 ڈفرینٹ ڈیفینیشنز پڑھی. اس کے بعد فونیٹکس کا فنکشن کیا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. فونیٹکس ایز این interdisciplinary science has many applications. اس کے بڑے ایک applications ہے. This includes its use in forensic investigation where trying to work out whose voice is being behind a recording. اس کو forensic investigation میں استعمال کیا جاتا ہے. Another use is its role in language teaching and learning, either when learning a first language or when trying to learn a second language. Learn a second language. اوکے تو اس کے استعمالات کیا ہے؟ اس کو انویسٹیگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کرمنلز کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کو لینگویج ٹیچنگ میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کے یوزز ہے، استعمالات ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی فونولوجی. فونیٹکس کے بعد دوسری اہم برانچ لنگوسٹکس میں فونولوجی ہے. فونولوجی کیا ہے؟ فونولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. پہلے جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ وہ اسٹڈی آف اسپیچ ساؤنڈز تھا. اس کا تعلق اسپیچ ساؤنڈز سے تھا. اور فونولوجی کیا ہے؟ اس کا تعلق لینگویج براہ راست لینگویج سے ہے، لینگویج ساؤنڈز نہیں. فونولوجی از a sub field of جی سوری فار ڈسٹربنس. Phonology is a subfield of linguistics which studies the sound system of language. کیا ہے میم آپ میں سے کسی ایک کا مائک آن ہے؟ کائنڈلی آپ کی کھانسی کی آواز میرے تک آ رہی ہے، ذرا غور کیجیے. جس کسی کا مائک آن ہے اسے آف کیجیے. Phonetics is a subfield of linguistics which studies the sound system of a language. یہ کیا کرتا ہے؟ لینگویج کے ساؤنڈ سسٹم کو اسٹڈی کرتا ہے اور یہ ایک سب فیلڈ ہے کس کی؟ لنگوسٹکس کی. An important characteristics of phonology is that it studies which sounds are distinctive units or
इसकी एक अहम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी खूबी क्या है, इज दैट इट स्टडीज विच साउंड्स आर डिस्टिंक्टिव यूनिट्स विद इन अ लैंग्वेज। ये हमें बताता है कि कौन सी साउंड्स हैं जो कि किसी लैंग्वेज में अहम किरदार अदा करती हैं। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश, अच्छा इसको हम क्या पढ़ते थे, पी बी टी डी, लेकिन नहीं, इसको वो जो हमने ऊपर आईपीए का जिक्र अभी पढ़ा था ना, ये आईपीए, ये साउंड्स से रिलेटेड है, आपको बताया गया था। अब आईपीए के अंदाज में हम इसको पढ़ते हैं पा बा टा डा। ये पी साउंड क्या है, पा। बी साउंड क्या है, बा। बा बॉल, टा टाइगर, डा डॉग। ये साउंड्स हैं और आईपीए डील्स विद साउंड्स नॉट अल्फाबेट्स। तो ये आपको समझाना था। ओके, एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश पा बा टा डा आर डिस्टिंक्टिव यूनिट्स ऑफ साउंड, दे आर फोनीम्स। ये जो चार अल्फाज कहे गए, ये एग्जाम्पल हैं फोनीम्स की। इनके जो साउंड है वो फोन है, वो साउंड है, वो आवाज है, ठीक है। और ये पा बा टा डा, ये जो चार लफ्ज है, ये उसका सिंबल है, साउंड का सिंबल है। फोनोलॉजी डिस्क्राइब्स द वे साउंड्स फंक्शन। अब फोनोलॉजी क्या करती है, ये में बताती है कि साउंड्स की फंक्शनिंग क्या है, साउंड्स कैसे काम करती हैं। Knowing the sounds of a language is one part of phonology, use of sounds is another part. अब कहा गया कि इसके भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि यू नो द साउंड्स, और दूसरा हिस्सा क्या है, यू नो हाउ द साउंड्स वर्क, हाउ दे फंक्शन। दिस इंपॉर्टेंस इज shown by the fact that you can change one word into another by simply changing one sound. और ये हमें बताता है कि आप एक साउंड को चेंज करके लफ्ज का टोटल मतलब बदल सकते हैं। कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड टाइम एंड टाइड। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं जी, यानी जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसको बड़ी तफसील से पढ़ा था। TIME और DIME, डाइम, सिर्फ टा और डा, दो साउंड्स चेंज की। अगर टाइम लफ्ज टी से शुरू हुआ तो टाइम टा, और डाइम डी से शुरू हुआ डा डाइम। एक साउंड चेंज करेंगे, वर्ड कैन बी चेंज्ड। द वर्ड्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फ्रॉम द फर्स्ट साउंड। और बाकी क्या है कि जनाब, बाकी सारा लफ्ज आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब मिलता जुलता एक जैसा। स्पेलिंग IME इधर भी है, IME इधर भी है, सिर्फ टा और डा का डिफरेंस आया, लफ्ज की साउंड भी बदल गई, उसका मतलब भी बदल गया। इसको स्टडी करना फोनोलॉजी का काम है। फॉर द फर्स्ट साउंड टा एंड डा केम देयरफॉर डिस्टिंग्विश वर्ड्स, यानी ये अल्फाज को एक दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं, एंड आर कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिंग साउंड्स। इनको हम कॉन्ट्रास्टिंग साउंड्स कहते हैं। ये जो चार साउंड्स आपको बताई गई थी, पा बा टा डा, ये कॉन्ट्रास्टिंग साउंड्स हैं। वर्ड्स की साउंड्स में कॉन्ट्रास्ट करती हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स को बदल के रख देती हैं। दे आर डिस्टिंक्टिव साउंड्स in English, and all distinctive sounds are classified as phonemes. They are distinctive sounds and all distinctive sounds are classified as phonemes. इसको मैंने एक लम्हे के लिए आपके लिए हाईलाइट किया है। ये बड़ी अहम चीज है आप लोगों के लिए कि फोनीम्स हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक तरह से फोनीम की डेफिनेशन है ये कि ऑल डिस्टिंक्टिव साउंड्स आर क्लासिफाइड एज फोनीम। भाई फोनीम क्या है, वो एक ऐसी साउंड है जो कि एक लफ्ज के मतलब को बदल सकती है। एक साउंड, एक फोनीम की तब्दीली से लफ्ज पूरा का पूरा बदल जाता है, उसकी साउंड बदल जाती है, उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं। ओके, फोनेटिक्स वर्सेस फोनोलॉजी। अब फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का आपस में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, इसको मैं मुख्तसर पढ़ता हूँ। फोनेटिक्स डील्स विद द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड फोन्स। फोनेटिक्स का ताल्लुक किस चीज से है, स्पीच साउंड्स से है। लफ्ज फोन आपके सामने आ गया जी, जब जैसे ही मैंने ये आज का लेक्चर शुरू किया था,
उसमें मैंने बताया था कि लफ्ज फोनेटिक्स फोन से निकला है, फोन मीन्स साउंड। तो फोनेटिक्स क्या करती है, डील्स विद द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड, इसका ताल्लुक स्पीच साउंड से है, एंड देयर प्रोडक्शन, it deals with sounds themselves rather than the context in which they are used in language, while phonology is the study of sound system. और phonology क्या है, phonology is the study of sound system। अगर इन दो सेंटेंसेस पर आप गौर करते हैं, ये पहला वाला फिक्रा फोनेटिक्स डील्स विद द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड, और ये फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। तो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का डिफरेंस बड़ा वाजे हो जाता है। एक का ताल्लुक बराह रास्त साउंड्स से है, स्पीच साउंड्स, दूसरे का ताल्लुक साउंड सिस्टम से है। ये बड़ा माइनर सेंस में डिफरेंस बयान किया गया है, आगे इनकी तफसील है, और मैं इस पे तवज्जो इसलिए दिला रहा हूँ, अल्फाज को, फिक्रात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फोनेटिक्स फोनोलॉजी अक्सर कंफ्यूज हो जाती है आपस में। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज स्टडिंग दीज थिंग्स एज अ स्टूडेंट, आई वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज, मैं हमेशा कन्फ्यूज रहा था फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के मामले में, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज हों, लिहाजा मैं बड़ी तफसील से बता रहा हूँ, बड़ी गहराई में जा रहा हूँ। फोनेटिक्स लुक्स एट द फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, उसी बात को जरा मुख्तलिफ अंदाज में कहा गया कि फोनेटिक्स क्या करती है, फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स से ताल्लुक रखती है, फोकसिंग ऑन विच वोकल ऑर्गन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये हमें बताती है कि जब एक साउंड प्रोड्यूस होती है तो कौन कौन से वोकल ऑर्गन्स है जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। वोकल ऑर्गन्स का इंटरेक्शन क्या है, ये भी हमने पढ़ा था। मसलन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जब उन्हें प्रोनाउंस किया जाए तो डब्ल्यू की साउंड, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये डब्ल्यू साउंड when या which, where, where, हमारा लोअर लिप, नीचे वाला होंठ अपर टीथ के साथ, नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांतों के साथ टच करता है, मतलब हमारे वोकल ऑर्गन्स में से दो ने डब्ल्यू साउंड प्रोड्यूस करने में हिस्सा लिया। when, where, which, why are interacting with each other, okay, and how close these vocal organs are in relation to one another, और इनका रिलेशन, इनकी वर्किंग कितनी क्लोज है, ये बताना फोनेटिक्स का काम है। फोनेटिक्स आल्सो लुक्स एट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइसिंग occurring at the pair of muscles found in our voice box। इसके बाद वॉइस बॉक्स क्या है जी, जहां हमारी जुबान खत्म हो जाती है, माउथ कैविटी है, वहां वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिसमें से एयर ट्रांसफर करती है, हवा गुजरती है, हमारे फेफड़ों से बाहर तक आती है, हमारे फेफड़ों में जाती है, और उस हवा के बाहर आने के साथ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, वो हमारा साउंड बॉक्स है, उसको भी स्टडी किया जाता है फोनेटिक्स में, ऑल्सो नोन एज द एडम्स एप्पल। इस हिस्से को, इस जगह को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। अब एडम्स एप्पल क्या है, अगर आप आईने के सामने खड़े होके मुंह खोल के अपने हलक में देखें तो एक मटर के दाने से भी छोटा एक एलिमेंट, एक दाना लटकता हुआ महसूस होता है जिसको हम टॉन्सिल्स कहते हैं मेडिकल की टर्म में। उसको, उस हिस्से को एडम्स एप्पल भी कहा गया है, वहां मैक्सिमम साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, उस हिस्से का जिक्र हो रहा है। उसको स्टडी करना कि किस तरह से साउंड्स वहां जनरेट होती हैं, मुख्तलिफ साउंड्स किस तरह से जनरेट होती हैं, इसको स्टडी करना फोनेटिक्स का काम है। इफ द वोकल folds are vibrating, this creates voicing, and any sound made in this way are called voiced sounds। ये बड़ी अहम चीज है जनाब, voicing and voiced sounds। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जब उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है तो वाइब्रेशन होती है, और हमारे पैलेट के करीब या हमारे मुंह के अंदर, हमारे 32 दांतों के दरमियान वाइब्रेशन हल्की सी होती है। ऐसी साउंड्स को वॉइस्ड साउंड्स कहा जाता है। और कुछ साउंड्स वो हैं कि जब उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है
تو کوئی وائبریشن نہیں ہوتی، انہیں ان وائسڈ ساؤنڈز کہا جاتا ہے. یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے، ایک حیرانگی کی بات ہے، لیکن ایگزامپلس موجود ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. فار ایگزامپل زی ساؤنڈ. If the vocal folds are not vibrating, this does not lead to voicing. اب زی ساؤنڈ ہے، یہ وائسڈ ہے. جب آپ یہ لفظ پرناؤنس کرتے ہیں زی زی، تو کیا ہے کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت آپس میں مل جاتے ہیں. پریشر آف ایئر، آؤٹ گوئنگ پریشر آف ایئر از بلاکڈ. جو ہوا ہمارے منہ سے باہر نکل رہی تھی وہ ایک لمحے کے لیے بلاک ہوتی ہے، کیونکہ اوپر اور نیچے والے دانت فرنٹ پہ آ کے مل جاتے ہیں. ایک وائبریشن ہوتی ہے. ایسی ساؤنڈز کو وائسڈ ساؤنڈز کہا جاتا ہے. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ وائبریشن نہیں ہوتی، وہ ان وائسڈ ساؤنڈز کہلاتی ہیں. جی نیکسٹ. دس ڈزنٹ لیڈ ٹو وائسنگ اینڈ کریٹ اے وائس. If the vocal folds are not vibrating, this doesn't lead to voicing and creates a voiceless sound. For example, S S. جب آپ اس لفظ کو پرناؤنس کرتے ہیں ایس ایس، فار ایگزامپل سے سم، تو ہمارے لپس آپس میں ٹچ نہیں کرتے، اوپر اور نیچے والا ہونٹ آپس میں ٹچ نہیں کرتے، ہمارے دانت آپس میں نہیں جڑتے، ہماری زبان اوپر پیلٹ کے ساتھ ٹچ نہیں کرتی. آؤٹ گوئنگ پریشر آف ایئر ڈز ناٹ فیس اینی ہنڈرنس. وہ جو پریشر آف ایئر منہ سے باہر جا رہا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو ساؤنڈ ہے یہ وائس لیس یا ان وائسڈ ساؤنڈ ہے. ساؤنڈز کو اس طرح سے دو کیٹیگریز میں بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے. اس چیز کی اسٹڈی فونیٹکس میں شامل ہے. You can observe this yourself by placing two fingers upon your voice box and saying Z and S repeatedly. تو کہا گیا کہ اگر آپ اس کو خود سے ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، خود سے تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے وائس باکس پر اپنے فنگرز رکھ لیں. یہ جو ہمارا ونڈ پائپ ہے ہماری گردن میں، اس کو اگر آپ اپنی دو انگلیوں سے ہلکا سا تھام لیں اور ان الفاظ کو پرناؤنس کریں 2 بار 3 بار 10 بار، تو آپ کو واقعی وائبریشن محسوس ہوگی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وائسڈ ساؤنڈز کون سی ہیں اور وائس لیس ساؤنڈز کون سی ہیں. اس کو اگر آپ نے فردر اسٹڈی کرنا ہو تو ایک بک جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کر رکھی ہے اس کو دیکھیں، یا پھر سمپلی یوٹیوب پہ جائیں، وائسڈ ساؤنڈز اور وائس لیس ساؤنڈز کلک کریں. آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملے گا، آپ کو گوگل سرچ پہ بھی ملے گا. ٹھیک، وہاں سے آپ اس کو فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں اف یو ہیو انٹرسٹ. تو یہ تھی جناب اہمیت والی باتیں، گہرائی والی باتیں، فونیٹکس اور فونولوجی کے راز و نیاز والی باتیں، جس کی بنا پر میں اس کو تھوڑی سی اہمیت دے رہا ہوں. ادروائز میں اس لیکچر کو آپ کے لیے سکپ کر دیتا کہ آپ خود ہی پڑھ لیں. اوکے، یو کین آبزرو، یہ ہو گیا تھا. یو شوڈ فیل وائبریشن اگینسٹ یور فنگر وین سیئنگ زی بٹ نو وائبریشن وین سیئنگ ایس. تو کہا گیا کہ جب آپ زی ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے تو آپ کے فنگرز اگر آپ کے ونڈ پائپ پہ ہیں، ہوا والی نالی پر ہیں، تو آپ کو وائبریشن محسوس ہوگی، ایس ساؤنڈ میں محسوس نہیں ہوگی. اب آ جاتے ہیں فونولوجی کی طرف. تو فونولوجی کیا ہے جی؟ فونولوجی however is associated more with the abstract properties of sounds. اس کا تعلق ساؤنڈ کی پراپرٹیز، اس کی صفات خصوصیات سے ہے. as it is about how these categories are stored in the mind. کہ یہ جو ساؤنڈز ہیں ذہن میں کیسے سٹور ہوتی ہیں. phonetics also describes certain properties as being gradients such as voicing, where we can compare the length of voicing between two sounds. For example, in French, B or ba is voiced for longer than English ba. In phonology, these segments are simply defined
categorically as being voiced or voiceless regardless of these subtle differences. ओके जी, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में डिफरेंस आपके सामने बयान किया। जिस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी मैंने बड़ी तफसील से आपके लिए बयान किया। ये चीज़ें ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बना देती हैं लिंग्विस्टिक्स से मुतल्लिक, और आप एतमाद से कह सकते हैं कि जी मैंने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी हुई है। आप इंटरव्यू में सवालों के जवाब दे सकते हैं, आप पेपर में इसको हल कर सकते हैं। अब इट्स डिपेंड्स कि आप इसको इस लेक्चर के बाद एक बार तवज्जो से पढ़ते हैं या नहीं। अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी की कुछ एक फर्दर ब्रांचेस हैं, और वो क्या है? पहले आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स comprises of three main fields according to the production। जब हम साउंड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फोनेटिक्स में तीन ब्रांचेस हैं। लो जी, लास्ट 10 मिनट्स रह गए हमारे लेक्चर की, और काम कितना रह गया? काम भी थोड़ा ही है। आर्टिकुलेटरी ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ट्रांसमिशन अकॉस्टिक है, एंड परसेप्शन ऑडिटिव ऑफ साउंड्स है। ये तीन ब्रांचेस हैं। फोनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इसको हम स्किप करते हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पे आ जाते हैं। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को याद रखने, जहन में रखने के लिए हम लफ्ज आर्टिकुलेट का मतलब अपने जहन में रखते हैं। आर्टिकुलेट मतलब बनाना, टू डिजाइन। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, जिसका ताल्लुक है स्पीच साउंड्स की प्रोडक्शन से, कि एक आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है। इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स, इट वाज एस्टेब्लिश इन 19th सेंचुरी। और कहा कि फोनेटिक्स की सबसे पुरानी शाख है ये। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज इंटरेस्टेड इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वोकल ट्रैक। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या करती है? इज इंटरेस्टेड इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वोकल ट्रैक ड्यूरिंग स्पीच। कि जब हम एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे वोकल ट्रैक में क्या मूवमेंट होती है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एडम्स एप्पल का जिक्र हमने पढ़ा, साउंड बॉक्स का भी हमने जिक्र पढ़ा, जिसको हम आम अल्फाज में हलक बोलते हैं, जुबान के पीछे वाला हिस्सा। वहां पर क्या मूवमेंट हो रही है, बाकी के वोकल ऑर्गन्स की क्या नकलो हरकत है, इसको स्टडी किया जाता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। द वोकल ट्रैक इज द पैसेज above the larynx where air passes in the production of speech। ओके, अब ये जो है कि द वोकल ट्रैक इज द पैसेज अबव द larynx where air passes, इसका एक बाकायदा एक डायग्राम है। वो चूंकि फोनेटिक्स आपका पूरा 100 नंबर का पेपर नहीं है, महज चंद पॉइंट्स, एक आध सवाल आना है इसमें से, तो वो डायग्राम मैं आपके लिए शेयर नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल मेरी वाली बुक्स में है, जहां से मैंने तैयारी की है, जहां से मैंने ये लेक्चर तैयार किया, वहां पर एक पूरे इसकी डायग्राम बनी हुई है। आप इसे नेट पे देख सकते हैं। बहरहाल मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और बाय द वे अगर समझ ना आए तो उस डायग्राम को नेट पे सर्च कीजिए, ना मिले मुझे बताएं, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, मेरे पास मौजूद है। किधर गया जी? हाँ, द वोकल ट्रैक इज द पैसेज अबव द लैरिंक्स। वोकल ट्रैक क्या है जी? ये एक रास्ता है अबव द लैरिंक्स, लैरिंक्स के ऊपर। लैरिंक्स ये हमारे हलक का जिक्र हो रहा है। वेयर एयर पासिस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जब हवा गुजरती है हमारे विंड पाइप्स में से। बड़ी आसान चीज, लैरिंक्स ना समझाए क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म है, तो हमारे विंड पाइप का जिक्र हो रहा है। इन सिंपल टर्म्स, विच bit of the mouth moves when we make a sound. VPM labels is a term that is used in phonetics. It means voice place manner labels। अब VPM क्या है? वॉइस प्लेस मैनर लेबल्स है। These labels are given to sounds
in order to describe where the sound is produced, how and where it is voiced or unvoiced. ओके ये वही पहले वाली बात है, इससे मुतलिक हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नई चीज आई है जी वीपीएम, और वो क्या है, वॉइस प्लेस मैनर। वॉइस प्लेस मैनर एक टेक्निकल टर्म है, इस्तेलाह है साउंड प्रोडक्शन के लिए, कि जब एक साउंड हमारे हलक में प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए, उसकी स्टडी के लिए वॉइस प्लेस मैनर एक लेबल रख दिया गया है, एक टर्म बना दी गई है। और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का क्या क्या काम है, लास्ट सेंटेंस में दीज लेबल्स आर गिवन टू साउंड्स, और ये मुख्तलिफ लेबल्स दिए जाते हैं, टैग्स लगाए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं साउंड्स को, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब वेयर द साउंड इज प्रोड्यूस, ये बताने के लिए कि आवाज हलक के किस हिस्से से पैदा हुई, हाउ एंड विदर इट इज वॉइस्ड और अनवॉइस्ड, और ये कि ये जो साउंड प्रोड्यूस हुई ये वॉइस्ड साउंड थी या अनवॉइस्ड थी। तो अगर हम लेबल्स की बात करते हैं कि साउंड्स को लेबल दिए जाते हैं, टैग लगाए जाते हैं, तो भाई वो टैग्स यही हैं, कुछ साउंड्स वॉइस्ड होती हैं, कुछ साउंड्स अनवॉइस्ड होती हैं। वही पहले वाली बात थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ बयान की गई है, लिहाजा इसमें डिस्टर्ब ना होइएगा, परेशान मत होइएगा। ऑडिटरी फोनेटिक्स है जी, ऑडिटरी सुनने से मुतल्लिक, जैसे लफ्ज ऑडिबल आपने पढ़ा हुआ है, वो आवाज जो सुनी जा सके, ऑडिबल से ऑडिटरी फोन्स हैं। ऑडिटरी फोनेटिक्स डील्स विद द परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, हम स्पीच साउंड्स को किस तरह से रिसीव करते हैं, उनको परसीव करते हैं, हमारे कान साउंड सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इस प्रोसेस को स्टडी करना ऑडिटरी फोनेटिक्स का काम है। दिस इज हाउ we perceive and hear sounds and how the ear, brain and auditory nerves perceive the sounds. ये सही मानों में एक साइंटिफिक रिसर्च है। तो ऑडिटरी फोनेटिक्स में देखा यह जाता है कि हाउ वी परसीव एंड हियर साउंड्स, कि हम साउंड्स को किस तरह से परसीव करते हैं। अब इसकी परसेप्शन में, इसकी रिसीविंग में बहुत सारी चीजें शामिल है। वो चीजें क्या हैं? ईयर, ब्रेन, ऑडिटरी नर्व परसीव द साउंड्स। ये एक पूरा प्रोसेस है जी जिसे मैं आपके लिए बयान कर रहा हूं। होता इस तरह से है कि जब एक साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड जनरेट होती है, वो स्पीच साउंड है। साउंड से मुराद कोई भी, जैसे पटाखा चलने की आवाज नहीं, स्पीच साउंड, कोई लफ्ज, कोई सेंटेंस जब प्रोड्यूस किया जाता है तो सबसे पहले ईयर, हमारा कान काम करता है, वो इस आवाज को, वेव्स को कैच करता है, क्योंकि हमारे कान क्या है, वो एंटीनाज हैं। ये आवाज ब्रेन तक पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती है, वहां हमारे दिमाग में ऑडिटरी नर्व्स हैं, कुछ नर्व्स हैं, आसाब हैं, जो कि इस साउंड को परसीव करके प्रोसेस करती हैं, इसको वसूल करके इसको प्रोसेस करती हैं, और फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसको डिकोड किया जाता है। ये डिकोडिंग आखिर में परसेप्शन कहलाती है, और हमें पता चलता है कि जो आवाज हमारे कानों ने सुनी, जो साउंड वेव्स हमारे कानों तक आई, वो हमारे लिए एक गुड न्यूज है या वो हमारे लिए वार्निंग है, वो हमारे लिए डांट है, वो हमारे लिए शाबाश है, क्या है, वो हमें पता चलता है कब? जब ये तीन चीजें प्रोसेस में आती है। नंबर एक ईयर्स, नंबर सेकंड ब्रेन, ब्रेन के अंदर ऑडिटरी नर्व्स, और ऑडिटरी नर्व्स उसे प्रोसेस करती हैं, और दिस इज हाउ वी परसीव द साउंड। दिस ब्रांच डील्स विद द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिसेप्शन ऑफ स्पीच, और ये सारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, लास्ट है जी acoustic phonetics. Acoustic phonetics deals with transmission and physical perception of speech sounds. Acoustic का अगर आप मतलब डिक्शनरी में देखते हैं तो acoustic मतलब है related to sound organs, ये sound organs से मुतल्लिक है। Acoustic phonetics deals with the transmission and physical प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड। ये क्या करती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड को डील करती है। दिस इज द स्टडी ऑफ द साउंड वेव्स मेड बाय द ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स
इसमें स्टडी किया जाता है कि ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स ने किस तरह से साउंड्स को जनरेट किया फॉर कम्युनिकेशन एंड हाउ द साउंड्स आर ट्रांसमिटेड. ये साउंड्स किस तरह से ट्रांसमिट हुई हमारे हमारे मुंह से बाहर निकली. साउंड ट्रेवल्स थ्रू फ्रॉम द स्पीकर्स माउथ थ्रू द ear to the hearer's ear. The sound travels through from the speaker's mouth. ये आवाज शुरू होती है बोलने वाले के मुंह से. थ्रू द एयर ये वेव्स की सूरत में हवा से गुजरती है. टू द हियरर्स ईयर सुनने वाले के कान तक जाती हैं. थ्रू द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस इन द एयर. और ये जो साउंड्स है ये वाइब्रेट करती हुई गुजरती हैं हवा में से. Phonetics can use equipment like oscillographs and spectrographs